Hello students, welcome to my channel. In last video, we have taught you the question number 3 and 4 of the exercise 3.7 of the optional exercise. In this video, now we will discuss with you with the next questions. Question number 5. In question number 5, in a triangle ABC, the condition is given that angle C equal to 3 angle B equal to 2 angle A plus angle B. In a triangle, angle C equal to 3 angle B equal to 2 angle A plus B, and we have to find the three angles of the triangle. Now, if let angle A equal to X and angle B equal to Y. Here, angle C equal to 3 angle B. It means angle C equal to 3, angle B equal to Y. यानी angle C equal to 3y. Or again, angle B or you can write angle C equal to 2 angle A plus angle B. यानी angle C के प्लेस पे we can write 3y and 2 angle A equal to X, angle B equal to Y. Or we can write 3y equal to 2x plus 2y. or 2x 3 plus 2y, अब 3y को राइट में ले जाए -3y इक्वल टू 0, और हियर वी कैन राइट 2x minus y equal to 0. It is equation number first. Now we know that sum of angles of a triangle equal to 180. So here angle A plus angle B plus angle C equal to 180. Angle A equal to X, angle B equal to Y, or angle C equal to already 3y. 3y equal to 180. So X plus Y and 3y equal to 4y equal to 180. It is equation number second. Now यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 2x minus y equal to 0. Second equation x plus 4y equal to 180. Now if we have to find the solutions, then we can write here 2 multiply by 4 in equation first and by 1 in इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी 8x और माइनस 4y इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 4y इक्वल टू 180. इट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ. अब इसे जो है हम ऐड कर दें, एक माइनस एक प्लस है इसलिए हम ऐड कर देंगे. अब ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो गया. इट इज 9x इक्वल टू 180. सो x इक्वल टू 180 बाई 9 यानी 20 डिग्री. अब इस x का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 या 2 में हम पुट कर दें. नाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट कर दें. इक्वेशन फर्स्ट की 2x minus y equal to 0, or you can write y equal to 2x. It is 2 into 40, so 2 into 20, so y equal to 40. यानी x का वैल्यू 20 हो गया और y का वैल्यू 40 हो गया. Now we have to find the three angles. Angle A equal to x degree. So
ए इक्वल टू यार ए एंगल ए इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू 20, एंगल बी इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू ऑलरेडी 40, and angle C equal to 3y, so it is 3, and y equal to 40, so it is 120. It means three angles of the triangles are 20 degree, 40 degree and 120 degree. Now see the next question number 6. Question number 6 is, according to question, draw a graphs of the equation 5x minus y equal to 5 and 3x minus y equal to 3. Determine the coordinate, the vertex of the triangle formed by the the lines and x-axis. Now at first the two equations are given. The first 5x minus y equal to 5 and second equation is given 3x minus y equal to 3. अब चूंकि सबसे पहले हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस फाइंड करना होगा. हियर वी कैन राइट 5x minus y 5x minus 5 equal to y और y equal to 5x minus 5. अब इसके लिए हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. एटलीस्ट 2 और 3 सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं. यहाँ भी जो है 3x minus 3 इक्वल टू y, इसके लिए भी आप सॉल्यूशंस लिख लें. 3 सॉल्यूशंस ही ले लेते हैं x y. नाउ इफ यू टेक x इक्वल टू 1, अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 5, सो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0. एंड इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 5, 5 टू जा 10 माइनस 5 इट इज 5. एंड इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 5, 5 3 जा 15 माइनस 5 यानी 10, सो इट इज 10. सिमिलरली यहाँ x का वैल्यू पुट कर ले. इफ है x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3, सो इट इज 0. एंड इफ है x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3, 3 2 जार 6 माइनस 3 इट मीन 3. एंड इफ है x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 जार 9 माइनस 3 इट इज 6, यानी हो गया 6. अब इसे ग्राफ पे आप जो है रिप्रेजेंट करेंगे. अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि आप जो है ग्राफ पे बनाएंगे, हम इसे रफली जो है ड्रा करके दिखाते हैं. सी हियर, ऐसे ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे दो इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं. अब तो यहाँ हम रिस्पेक्टिवली यह जो है यह ले लें x एक्सिस और यह हो गया आपका y एक्सिस. अब यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब देखें फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशंस है 1 0, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0. इसी तरह से यहाँ देखें यह जो है x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 5 है, यह पॉइंट हो गया. इसी तरह से x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू है 10. अब इसे जो है हम स्ट्रेटली स्केल के का हेल्प लेके आप ज्वाइन कर देंगे. ऐसे आप इसे ग्राफ पे फेयरली ड्रा करेंगे. हम इसे ज्वाइन करते हुए इसे प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे. क्या फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकंड जो है, सेकंड जो इक्वेशन है x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, यानी सेम हुआ. और जो है फिर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 है, और फिर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू है 6. अब देखें फिर अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को,
तो ऐसे जो है क्या इंटरसेक्ट करते हुए प्रोड्यूस होगा। अब यह जो वाई एक्सिस है वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब इसे ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो यह जो लाइंस जो है वह इसे 2 पॉइंट्स पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ जहाँ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप जो है इसमें आप काउंट कर लेंगे 1 ऐसे इक्वली आप जो है, तो यहाँ इसके ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हो गए, इसे आप ए ले लें, यह आपका बी पॉइंट हो गया, इसे सी आप ग्राफ पे इसे ड्रा करेंगे और यह जो ट्राइंगल बना इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट लिखना है। आप जब इस पे ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो आपको इसके जो कोऑर्डिनेट है यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है जो है ए का, तो ए देखिए एक्स एक्सिस पे है और ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। सिमिलरली बी जो पॉइंट है वह बी पॉइंट देखिए एक्स इक्वल टू है जो एक्स जो है वह तो 0 है, यानी बी पॉइंट का बी एक्स क्या हो गया 0 हो गया और यह अप्रोक्स जो है 1 2 और 3 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी यह हो जाएगा बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -3। सिमिलरली सी जो है, सी जो पॉइंट है इसके लिए भी आपका जो है यह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपका 0 और -5। इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपको ट्राइंगल का जो है जो बने जो ट्राइंगल है वाई एक्सिस के साथ, तो इसके साथ जो है जो ट्राइंगल है उसका कोऑर्डिनेट लिखना था, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना था। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0 1, बी का हो गया 0 -3, सी का हो गया 0 -5। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, इसलिए फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आप तक पहुंचा सके। थैंक्स। Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.